students, today we are going to study exercise 7.1 from question number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. I told you in the previous days that if A and B is a line and any points lies on the line AB, then P and Q is called the collinear points. It means what is the collinear? If two or more points lies on the same line are called collinear points. So we can prove it. Solution: let A 1, 5, coordinates of A is equal to 1 and 5 here, where x1 is equal to 1, y1 is equal to 1. Yeah, you can write as x1, y1, x2, y2. आप इसको A, B, C आप राइट कर सकते हो, ठीक? तो आप इसे राइट करेंगे कि लेट A 1, 5 and B 2, 3. So first of all you have to find the distance of A and B. So here AB is equal to root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Put the value of x1 minus x2 here, x1, y1, x2 and y2. x1 is equal to 1 minus 2 whole square plus y1 5 minus 3 whole square. So 1 minus 2 you get minus 1 square 1 plus 5 minus 3 2, the square of 2 is equal to 4. It means you will get root 5. The distance of AB is equal to root 5. Then you will find the distance between B and C. फिर आप क्या करेंगे? B और C के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर राइट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ B कितना है? B 2, 3 and C -2, -11. Here x1, y1, x2, y2. Find the value. Distance between BC is equal to root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Putting the value of x1, y1, 2 minus x2, negative है तो negative sign and negative sign will join together, get positive sign. तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस 2 plus 2 whole square plus y1 है 3 minus y2 is negative, so minus plus हो जाएगा 11 whole square. तो 2 plus 2 4 का स्क्वायर करेंगे 16 plus 11 and 3 14 का स्क्वायर किया आपने 196. You will get 6, 12 2 carry 1 2 and 9 11 1 carry 1 2 and 1 1 and 1 2. Then आपको कोलिनियर के लिए बताया था कि A और B पर AC पॉइंट आपका, तो A आपका पॉइंट हो गया 1, 5. तो if the distance of A, B and C, if AB is plus BC, AB plus BC is equal to AC, this shows that the given points are collinear. तो आपने AB और BC फाइंड कर लिया. अब आप क्या फाइंड करेंगे? CA. तो CA फाइंड कीजिए. CA इक्वल C के कोऑर्डिनेट्स राइट करेंगे. C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 -11.
और ए की कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 1 and 5. तो फाइंड द डिस्टेंस x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Putting the value of x1 x2 minus 2 minus 1 whole square. This one is x1 y1 and x2 y2 plus y1 11 minus 5 whole square. तो -2 -1 -3 के स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट पॉजिटिव साइन, 3 3 जा 9 प्लस 11 minus 5 6, the square of 6 is equal to 36. ऐड करेंगे 9 6 15 5 पहली 1 3 and 1 4. आप इसमें देख रहे हैं AB का डिस्टेंस कितना है √5, इसका है √212 और इसका आ गया √5. हमने क्या बताया कि AB plus BC is equal to C. Then it means the given points are lies on the same line or they are collinear points. But here AB plus BC is not equal to C, so we can write as AB plus BC is not equal to C. It means therefore the given points are not in collinear. यानी ये पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. See with 5 minus 2 5 minus 2 and 6 4 and 7 minus 2 or the vertex of the isosceles triangle. Or the vertex of isosceles triangle. So first of all, you have to decide here कि what is isosceles triangle. In the previous class I told you isosceles triangle कि there are 3 types of the triangles: equilateral triangle, isosceles triangle and scaling triangle. Isosceles triangle a closed figure है ना, a closed figure bounded by 3 segments in which 2 sides are equal. तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से इसको चेक करेंगे. अगर इसकी 2 साइड्स जो इक्वल होगी तो दिस ना इट मींस these points are the coordinates of isosceles triangle. तो सॉल्यूशन करते हैं. यहाँ पर देखिए ABC कुछ नहीं दिया है, तो कोऑर्डिनेट इसको लिख लेंगे कि A है 5 minus 2, then B 6 4 and 7 minus 2. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन जो है A and B. AB के बीच का डिस्टेंस पहले आप फाइंड करेंगे. तो AB का डिस्टेंस क्या होगा देखेंगे यहाँ पर. AB is equal to √x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. तो AB के डिस्टेंस के लिए आपका ये होगा x1 y1 और ये क्या होगा x2 y1.
तो इसकी वैल्यू को पुट अप करेंगे तो x1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 माइनस x2 है 6 होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया आपका -2 माइनस y2 है 4 होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 6 आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन ज्यादा है तो पॉजिटिव से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नंबर तो 6 माइनस 5 हो जाएगा -1 तो -1 का स्क्वायर और प्लस -2 -4 हो जाएगा -6 स्क्वायर। You will get you know that the square of -1 is a positive number तो -1 का स्क्वायर किया आपने 1 1 जा 1 प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 6 6 जा 36 you will get 37 the distance of AB is equal to 37 unit। इसी तरह से आप BC फाइंड करेंगे तो BC is equal to फिर यही फार्मूला आपका आएगा x1 माइनस x2 डिस्टेंस फार्मूला ही आपको यूज करना है प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए BC फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1 हो जाएगा और एक x2 y2। अब इसकी वैल्यू को पुट अप कीजिए ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया आपका 4 माइनस y2 -2 है प्लस 2 होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 7 हो जाएगा -1 का स्क्वायर किया आपने 1 प्लस 4 to 6 6 का स्क्वायर किया आपने 36 यू विल गेट 37। इट मींस आपको मिल गया AB और BC क्या हो गए इक्वल हो गए। अब CA भी फाइंड कर लेंगे CA is equal to root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। तो CA लेंगे तो ये क्या होगा x1 y1 ये होगा x2 y1। तो पुट द वैल्यू ऑफ x1 कितना है 7 है तो राइट करेंगे 7 माइनस x2 है 5 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया -2 माइनस y1 -2 माइनस माइनस है 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 पर होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर होगा 4 ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इट मींस यू विल गेट 4 or 2 the square root of root 4 is equal to 2। तो here we get कि AB is equal to BC AB is equal to BC not equal to C यानी इस ट्रायंगल्स के 2 साइड्स इक्वल हैं थर्ड साइड इक्वल नहीं। तो हमने अभी बताया ना आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कि if the two sides of a triangle are equal it means that's prove the isosceles triangle। isosceles triangle का क्या डेफिनेशन होता है a close figure bounded by 3 line segments in which two sides are equal only two sides are equal तो two sides equal हो गए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि therefore therefore the given points are given coordinates or the vertex of isosceles triangle। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इन पूरी चैप्टर में आपको जो है एक ही जो है डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और यूज करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स। एक आपका पॉइंट्स दिया हुआ है बुक में जो है देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट्स राइट करेंगे। ए का कोऑर्डिनेट्स देखिए आपका एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर 4 है, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 3 एंड 4। फिर इसी तरह से आप बी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स आप बी के लिए देखेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर चलेंगे 5 एंड वाई एक्सिस पर 5 एंड 6। बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए 6 एंड ऊपर है y एक्सिस पर 7, 6 एंड 7, बी हो गया आपका 6 7। सी के कोऑर्डिनेट्स आप देखें, बुक में फिगर बना हुआ है, फिगर से देखें। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 9 एंड y एक्सिस पर 4, 9 एंड 4। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, डी है आपका 6 एंड 1। क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, करेक्ट इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं। चंपा जो है ना एंड समीली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड टू चमेली दैट इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर। चमेली says, I hope so, not, कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं कि स्क्वायर बना रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है तो by using the distance formula you have to find out कि that ABCD is the points of a square or not। यानी आपको क्या प्रूव करना है कि ABCD के जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपके स्क्वायर के पॉइंट्स हैं या नहीं। तो स्क्वायर का चेक क्या होता है, हमने कल बताया था आपको स्क्वायर के लिए क्या चेक करते हैं। स्क्वायर भी होता है स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर, अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइंस। इसकी क्या होती है 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसके सभी साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। लेकिन रोम्बस के भी क्या ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। रोम्बस में भी क्या होते हैं ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम केवल एक प्रूव कर लें कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल है ना, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि रोम्बस के भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इसलिए आपको इसके लिए क्या करना होगा ना कि ए बी सी डी अगर इसके 4 साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो इसके डायगोनल भी आपको प्रूव करना होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के ये डायगोनल जो होते हैं नॉट इक्वल होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते हैं। ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि इसमें क्या होता है AC इज नॉट इक्वल टू BD होगा, इसमें क्या होता है AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला ना आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square। ये होगा आपका 3 minus 6 whole square plus 4 minus 7 whole square। तो 3 minus 6 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर किया आपने 3 जा 9 प्लस 4 minus 7 minus 3 का स्क्वायर किया आपने 9, यानी 9 9 जा 9 9 18, 9 और 9 ऐड करके आपने 18 आ गया। सेकंड फाइंड कीजिए BC, देयर इज नो नीड टू राइट है ना, टाइम टू टाइम से है डिस्टेंस फार्मूला यू विल गेट ना, पुट द वैल्यू ऑफ द B एंड C। ये आपका हो गया x1 y1 x2 y2 ऐसे रखेंगे। तो BC के लिए आप रखेंगे x1 कितना है 6 माइनस x2 हो गया 9, 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर किया आपने 9 प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर किया आपने 9, यू विल गेट √90, यानी AB इक्वल हो गया BC के। फिर इसी तरह से आप CD फाइंड करेंगे।
CD के लिए भी देखेंगे तो ये क्या होगा x1 y1 h2 y2 तो 9 minus 6 x1 minus x2 हो गया 9 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस ये रखिए y1 minus y2 4 minus 1 ये हो गया 4 minus 1 होल स्क्वायर तो 9 minus 6 3 का स्क्वायर कर दिया आपने 9 प्लस 4 minus 1 3 का स्क्वायर किया आपने 9 you will get the same number root 18 यानी AB BC CD तीनों इक्वल आ गया अब क्या बचा DA फोर साइड्स आपको देखना है तो DA के लिए लिखेंगे DA के लिए हो जाएगा D और A 6 minus 3 होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 होल स्क्वायर 6 minus 3 का स्क्वायर किया आपने 9 प्लस 1 minus 4 you will get minus 3 का स्क्वायर किया आपने 9 ऐड कर दिया आपने 18 इसका मतलब ये हो गया AB BC CD एंड DA ऑल आर इक्वल जब सभी इक्वल हो गए तो हमने दो चीजें आपको बताएं कि स्क्वायर की भी ऑल साइड्स क्या होती है इक्वल होती है तो अगर हम केवल इतना ही प्रूव कर दिए कि फोर साइड्स इसके इक्वल हैं तो ये स्क्वायर के लिए सफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि रोम्बस की भी ऑल साइड्स इक्वल तो इसके आगे हमको क्या करना होगा अभी बताएं आपको कि इसमें डायगोनल्स इफ AC एंड BD आर इक्वल इट मींस इट प्रूव्स दैट द गिवन पॉइंट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्क्वायर और if AC is not equal to BD अगर AC BD के बराबर नहीं आया इसका मतलब कि ये रोम्बस है स्क्वायर नहीं है तो आप इसका जो फाइंड करेंगे डायगोनल AC इक्वल तो A और C के कोऑर्डिनेट्स लेंगे A और C तो क्या होगा 3 minus 9 होल स्क्वायर प्लस 4 minus 4 होल स्क्वायर 3 minus 9 हो गया आपका minus 3 का स्क्वायर क्या आपने 9 और प्लस 4 minus 4 0 का स्क्वायर 0 होगा यानी you will get root 9 is equal to 3 आपको AC का फाइंड हो गया AC is equal to 3 units then find check BD तो B और D के जो है आप पॉइंट्स लेंगे तो BD is equal to BD रखिए x1 minus x2 6 minus 6 होल स्क्वायर प्लस 7 minus 1 होल स्क्वायर 7 minus 1 होल स्क्वायर तो 6 minus 6 हो गया आपका 0 का स्क्वायर 0 प्लस 7 minus 1 6 का स्क्वायर हो गया 36 तो 36 का स्क्वायर कितना होगा 6 इट मींस x1 आपको देख रहे हैं फोर साइड्स इक्वल हो गए तो आपको AC फाइंड किया आपने ना तो A और C का पॉइंट्स आपने लिया A और C के पॉइंट्स मिस्टेक किया 3 minus 9 ये क्या होगा आपका 3 minus 9 देखिए D A था ना 6 minus 3 होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 ठीक है डायगोनल इसका देखिए AC का आपने फाइंड किया तो लिखेंगे x1 की वैल्यू हो गई 3 और C का है -9 3 minus 9 स्क्वायर प्लस 4 minus 4 स्क्वायर तो 3 minus 9 6 minus 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36 प्लस 0 36 का स्क्वायर कितना होता है 6 it means diagonal AC and BD both are equal तो हम क्या राइट करेंगे लिखेंगे यहाँ पर कि AB equal BC equal CD equal D and diagonal AC is equal to B therefore the given points
the coordinates of a square, ये आपका आंसर, ठीक है। यानी आपको स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले फोर साइड का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है AC इसके डायगोनल फाइंड करेंगे। डायगोनल अगर इक्वल है तो इसका मतलब हो गया कि ये पॉइंट्स जो है क्या होंगे, ये स्क्वायर के पॉइंट्स होंगे। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आया इसका मतलब कि दीज आर नॉट द पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर, इट मींस इट इज अ रोम्बस। नेक्स्ट आप देखेंगे इससे आपको एक क्वेश्चन करके लाना है 6। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो ए स्क्वायर होगा तो इसकी क्या होगी, फोर साइड्स इक्वल होगी और इसकी डायगोनल आप चेक करेंगे AC इज इक्वल टू BD। रोम्बस होगा तो रोम्बस में आपको फोर साइड्स इक्वल होंगे और इसके डायगोनल जो है इक्वल नहीं होते हैं। इसी तरह से आप रेक्टेंगल में चलेंगे, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और इसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिसमें हम लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं इसके डायगोनल आपको चेक करना है ना कि डायगोनल इक्वल है तो ये रेक्टेंगल होंगे। और अगर ये फोर्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और इसके डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होगा। तो आप इसकी अकॉर्डिंग जो है आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।